Students, welcome back. We were starting about the reproductive system. We shall just brush it up wherein of the earthworm. So basically, it is a hermaphrodite that is bisexual, possesses both the female as well as the male reproductive organs in the same system, same body. And we studied about the male reproductive parts, that is it contains what testes, which are located in testis sac, then wherein we have yes, from the testes arises two pair, that is one pair of vasa differentia each on the other side, fine. And exactly below the testes we have seminal vesicles, fine. Then we have prostate gland, something like this. Then we have the prostate gland and the genital opening in the 18th segment, exactly on the opposite side, fine. In the 18th segment we have a pair of male genital openings. So that was about the male reproductive system. We did see the function of the various parts, fine. Similarly, when we talk about the female reproductive organs, so it consists of what? It consists of ovaries, as we have seen, located in the 13 segments. Exactly below it we can see the ovarian funnel, fine. Ovarian funnel which meets the tube like structure, the funnel like this is termed to be as ovarian funnel, which joins and forms the oviduct over here. And then exactly over here we have the female genital pore, fine. That is in the 14th segment in the clitoral region. So this was all about the male and the female reproductive organs. And now we shall understand about the copulation, how do the fertilization takes place. So basically you must be wondering that earthworm possesses both male and the female reproductive parts, therefore they may be exchanging the sperm and the egg in the same organism, but it is not so. Rather it is an sexual reproduction and therefore the gametes needs to be exchanged, gametes को exchange होना पड़ता है, fine. So basically what happens in animals, this doesn't happen and therefore the gametes exchange. So how do the gamete exchange? The sperm of one earthworm gets entered into the sperm of the other earthworm, and this earthworm will share its sperms with the other one. So basically they share their sperms. The egg will remain their own, but the sperm for this earthworm will come from here, and the sperms from this earthworm will go from here, fine. So basically they follow the sexual reproduction, therein the exchange of gametes is needed, fine. Now talking about suppose there are two words which are need to be taken into consideration, that is protandry and protogeny. So when we talk about protandry, मतलब क्या होता है, जब किसी अर्थवर्म के अंदर मेल गैमेट्स जल्दी बन जाते हैं, मैच्योर जल्दी हो जाते हैं, तो उसे उस अर्थवर्म को हम क्या बोलेंगे, कौन सी प्रोसेस वो फॉलो कर रहे हैं, तो दैट इज़ प्रोटेंड्री. अब जब हम किसी अर्थवर्म की बात कर रहे हैं और उसमें फीमेल गैमेट जल्दी डेवलप हो रहे हैं, जल्दी रिलीज हो रहे हैं या जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे प्रोटीगिनी. सो प्रोटेंड्री मतलब में मेल गैमेट पहले बनता है, पहले मैच्योर होता है, और प्रोटीगिनी में क्या होता है, फीमेल गैमेट पहले बनता है, पहले मैच्योर होता है. अब जब हम बात करते हैं तो क्या होता है बेसिकली इसके बारे में, तो वी शैल जस्ट हैव अ क्विक लुक on it. So basically if you can see over here, the earthworm is an hermaphrodite animal. The cut section wherein you can see the reproductive parts here, so wherein we have the testes, then the ovaries, fine. Yes. So protandry, suppose what is protandry, that is when the testes mature earlier or the sperms are formed first. So just have a closer look at the male reproductive system. Yes, that is we have testes, then we have testes sac, seminal vesicles, vas deferentia, prostate glands, and we have the accessory glands too, fine. If we have the zooming section we can see it very clearly, fine.
wherein we have two pairs of testes exactly below the testes, where in the testes what happens, which are located in the 10th and the 11th segment, we are able to the sperms are produced. Then we can see the vas deferentia that arises from this semiducal funnel like structure. As you can see this funnel like structure उसमें से arise होता है और 18 segment तक जाता है. Fine. Then we have the prostate glands and we have the accessory glands, और ये जो है वो है common duct. Fine. And we have 4 pairs of spermatheca in order to store the sperms of the another that is earthworm which is going to come. Yes, and we have 2 pairs of seminal vesicles located in the 11th and 12th segment. Fine. Wherein what happens, the maturation of the sperms happens. And we have a common spermatic and prostatic duct wherein from हमने देखा ही है उसका फंक्शन. अब जैसे ही हम देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ओवरीज होते हैं, ओवरियन फनल होते हैं और ओविडक्ट होते हैं. फाइन. सो जैसे कि ये देखो वाइट स्मॉल बहुत लोब्यूलेटेड होती है, छोटी छोटी. फाइन. ऑन द अदर साइड एग्जैक्टली बिलो द सेमाइनल वेसिकल्स wherein we have the ovarian funnel which joins and forms the oviduct, and over here we have the female genital pore in the 14th segment. Fine. That is basically in the clitoral region. Now how does the copulation takes place? See, so basically the earthworms, can you see the earthworms, they are lying like this in such a position, and this position is termed to be as juxtaposition. Juxtaposition as in the head of the one will lie towards the tail of the other and the head of the other will lie towards the tail of the other. Fine. So that is they are lying in an opposite direction. Fine. तो इन इसका माउथ और इसका टेल की डायरेक्शन एक होगी और इसका माउथ और इसकी टेल की डायरेक्शन एक तरफ होगी. तो इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, जक्स्टा ऑपोजिट पोजीशन. फाइन. और उनका जो कॉपुलेशन होता है, जो मेटिंग होता है, वो कौन से सीजन में होता है, जुलाई टू अक्टूबर में वो मेटिंग होता है. फाइन. यस, जक्स्टापोजिंग ऑपोजिट डायरेक्शन. फाइन. वो क्या करेंगे इस टाइम पे ऐसे ले करके दे विल स्टार्ट एक्सचेंजिंग देयर. हाउ डू दे एक्सचेंज देयर स्पर्म्स. फाइन. सो हम देखेंगे, जैसे कि ये डायग्राम नहीं, सपोज मैं एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर लूँ. जैसे हमें पता है सेम कि इसका हेड है तो इस तरफ और इस तरफ उसका टेल आएगा, समझ लो. फाइन. और सिमिलरली जब हम बात करेंगे इसके टेल के साइड इसका हेड आएगा. दिस इज हाउ दे जॉइन. फाइन. दे जॉइन कंप्लीटली टू ईच अदर. ना बेसिकली व्हाट हैपन्स, समझ लो ये है, हाँ, तो ये है क्लाइटेलियल रीजन, समझ लो. हाँ, जैसे हम तो ये क्लाइटेलियल रीजन किन में होता है, तो 14th, 15th और 16th सेगमेंट में होता है. अब हमें पता है कि 18th सेगमेंट में क्या होता है, मेल जेनाइटल ओपनिंग होता है. तो ये जो मेल जेनाइटल ओपनिंग होता है एक अर्थवर्म का, वो दूसरे अर्थवर्म के कौन से सेगमेंट में होगा, तो जहाँ के भाई स्पर्मैथिकल एपर्चर्स होते हैं. कहाँ, स्पर्मैथिकल एपर्चर्स होते हैं. तो जिसकी वजह से इस मेल जेनाइटल ओपनिंग को समझ लो, तो ये इसका क्लाइटेलियल रीजन समझ लो. फाइन. तो ये क्या करेंगे, तो और इसके नीचे फिर क्या होगा, इसका मेल जेनाइटल ओपनिंग होगा जैसे कि 18 सेगमेंट, और इधर इसके स्पर्मैथिकल एपर्चर्स होंगे. हाँ. फाइन. सो बेसिकली ये क्या करेंगे, तो इनके मेल जेनाइटल ओपनिंग से ये यहाँ स्पर्म ट्रांसफ़र करेंगे जो स्पर्मैथिकल बैग में स्टोर हो जाएंगे, और वही सेम चीज़ है इनके मेल जेनाइटल ओपनिंग से ये क्या करेंगे, सामने वाले को स्पर्म्स भेजेंगे. फाइन. जो इनके बैग्स में स्टोर हो जाएंगे. सो दिस इज द पोजिशन विच इज टर्म टू बी एज द juxtaposing opposite direction. फाइन. द मेल जेनाइटल एपर्चर ऑफ द वन लाइज, द मेल जेनाइटल एपर्चर, तो ये मेल जेनाइटल एपर्चर
aperture है of the one earthworm lies in exactly opposite side of the spermatical pore of the other earthworm. So इनका जो है इनके साथ कनेक्टेड होगा और ये जो मेल जेनाइटल ओपनिंग है इसके साथ कनेक्टेड होगा, जहाँ क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ स्पर्म्स विल टेक प्लेस. फाइन. सो दैट इज ऑल दैट यू हैव टू रिमेंबर. फाइन. और रेनी सीजन में जुलाई टू अक्टूबर में इन द मॉर्निंग दैट इज इन द डॉन ये चीज़ होती है. फाइन. अब बेसिकली इसके बाद क्या होता है, एक बार कॉपुलेशन हो गया समझ लो. अब कॉपुलेशन मतलब में स्पर्म्स एक्सचेंज हो गए, तो अब क्या होगा, इनके अंदर भी एग है, इनके अंदर भी एग है. अब वे स्पर्म्स और वे एग फर्टिलाइज करेंगे. तो कैसे फर्टिलाइज करेंगे हम वे देखेंगे. दैट इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोकून और ऊथिका विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द क्लाइटेलियम इन द 14th, 15th एंड 16th रीजन. 14th, 15th और 16th रीजन में क्या है, तो भाई क्लाइटेलियल रीजन है और उधर से कोकून बनेगा. अब हम समझते हैं कि वो कैसे होता है. फाइन. They lie in the opposite direction, then they will exchange their sperms. Fine. Now what happens, just have a look from the clitoral region, if you are able to see it very clearly. From the clitoral region, after that is cocoon or ootheca starts formation. Fine. It starts its formation when the ovaries mature. जब ovaries mature हो जाएगी तब ये चीज़ होने लगेगी. अब इधर से क्या बन रहा है, वाइटिश कलर का जैसे कोकून लाइक स्ट्रक्चर इधर से फॉर्म होगा. अब ये क्या करेगा, ये जो कोकून है वो धीरे धीरे अर्थवर्म पीछे की तरफ स्लाइड होगा और ये कोकून आगे की तरफ स्लाइड होगा. फाइन. अर्थवर्म धीरे धीरे पीछे निकलेगा, पीछे जाएगा, जिसकी वजह से ये कोकून क्या होगा, वो धीरे धीरे आगे शिफ्ट होता होता बाहर निकलेगा. अब ये जब बाहर निकल रहा है तब समझना, ये जो कोकून है ये कोकून कहाँ पे फॉर्म हुआ है, 14th, 15th और 16th में. हमें पता है कि 14th में एग्जैक्टली मिड में क्या होता है, यस, तो फीमेल जेनाइटल ओपनिंग होता है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है. फाइन. जैसे कि 14th में फीमेल जेनाइटल ओपनिंग होता है, तो जो एग्स इधर से आएंगे वो इस 14th में से बाहर निकलेंगे. फाइन. तो 14th सेगमेंट में से बाहर निकलेगा एग और किस में स्टोर हो जाएगा, इसके अंदर. अब ये धीरे धीरे आगे जा रहा है, तो आगे जाने पर क्या होगा, इधर स्पर्मेटिकल एपर्चर होंगे तो वो स्पर्म्स भी अंदर आ जाएंगे. तो एग्स भी अंदर आ गए और स्पर्म्स भी अंदर आ जाएंगे. साथ ही साथ न्यूट्रिटिव मटीरियल वगैरह जो होता है वो सारी चीज़ें इसमें से बाहर निकल के आएगी और वे धीरे धीरे अर्थवर्म पीछे जाएगा और ये आगे जाएगा, आगे स्लाइड करेगा. उसके बाद क्या होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं वो स्लाइड होने पे धीरे धीरे बाहर आके ये क्या बन गया है, कोकून. फाइन. अब ये जो कोकून है उनके अंदर क्या क्या है, तो स्पर्म है, एग है और न्यूट्रिटिव फ्लूइड है इस कोकून के अंदर. फाइन. और ऊथिका के अंदर. फाइन. अब धीरे धीरे क्या होगा, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब में ये कोकून के अंदर ही क्या होगा, वो फ्यूजन करेगा एग और क्या, स्पर्म. और फ्यूजन करने के बाद क्या होता है, ऑब्वियसली उसमें से एम्ब्रियो बनता है और वो जो एम्ब्रियो है, हाँ, फर्टिलाइजेशन मतलब में फ्यूजन, डेवलपमेंट मतलब में उसकी ग्रोथ, वो सारी चीज़ें ककून के अंदर होती है. और ये ककून कहाँ होता है, सॉइल के अंदर डिग्ड होता है, फिर डग होता है. फिर उसके बाद जब वो सारी डेवलपमेंट वगैरह हो जाएगी तो ये ककून में से क्या निकलेगा, वर्म्स निकलेंगे. क्या निकलेंगे, बेबी वर्म्स. जैसे आप देख सकते हो ये बेबी वर्म्स इसमें से रिलीज हुए हैं. फाइन. यस. सो ये जो बेबी वर्म्स है फिर मेच्योर होंगे, बड़े हो जाएंगे, दे विल फॉलो द सेम पैटर्न. नाउ बेसिकली सो जो ककून है वो इस रीजन में से बनता है. जैसे कि ये इस रीजन में ककून बना तो ये ककून एंटीरियर रीजन में स्लाइड होगा और ये पीछे की तरफ. अब जब ककून बना तो इधर मेल जेनाइटल पोर है, इधर से एग इसके अंदर आ जाएगा, एग्स आ जाएंगे इसके अंदर. फाइन. साथ ही साथ जब ये आगे स्लाइड होगा, समझो ये आगे स्लाइड होगा ककून, तब क्या होता है, जब आप देखो तो इधर स्पर्मेटिकल एपर्चर है तो वो स्पर्म्स को भी लेते जाएंगे. फाइन. फिर स्पर्म्स हैं इसके अंदर एग है, इसके अंदर न्यूट्रिटिव फ्लूइड है. फाइन. तो जैसे कि म्यूकस होता है, फिर वॉल ऑफ कोकून होते हैं, फिर उसके अंदर न्यूट्रिटिव मटेरियल जैसे एल्ब्यूमिन होते हैं, फिर एग सेल, मैच्योर स्पर्म्स होते हैं, न्यूट्रिटिव फ्लूइड होते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं. और फिर क्या करते हैं, इसमें से बेबी वर्म्स निकलेंगे. क्या निकलेंगे, बेबी वर्म्स. अब ये जो होता है ककून वो सॉइल के अंदर रहता है, उसके अंदर ही फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होगा. फाइन.
अब 3 वीक्स के बाद एग्जैक्टली 3 वीक्स में उनका डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है और 2 to 20 बेबीज़ निकलते हैं उसमें से, एक ककून में से। एवरेज 4 का रखेंगे। एवरेज क्या होता है, 4 जितने बेबीज़ निकलते हैं, बट कभी कभार 20 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। एवरेज इज़ 4। बट डेवलपमेंट, टू इम्पॉर्टेंट थिंग, डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, ये आपने पढ़ा ही है। दैट इज़ देयर इज़ नो लार्वल स्टेज, कोई लार्वल स्टेज नहीं है। फाइन, डायरेक्टली जैसे अर्थवर्म दिखते हैं वैसे ही वे दिखते हैं। फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर नहीं हो रहा, बॉडी के बाहर हो रहा है, तो दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फाइन, सो दिस इज 2 important things that you need to remember regarding the development and fertilization. Fine, so hopefully you have understood about the reproductive system, the fertilization and the development in the earthworm. Fine. Now in the this class we shall also complete about the respiratory system. When we talk about the respiratory system, तो basically respiratory system पूरी नहीं है, पर yes उसके अंदर organ तो ज़रूर है। हमारे में जैसे nose है, फिर समझ लो pharynx है, larynx है, trachea है, bronchus है, lungs है, तो हमारी एक system है। पर इनमें कोई system नहीं है, ये absent है। बट organ है जिससे वो respiration करते हैं, that is the skin. स्किन के थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं। फाइन, और इसकी वजह से जब स्किन से रेस्पिरेशन होता है तब उसे क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। फाइन, अब O2 एंड CO2 डिफ्यूज इन एंड आउट फ्रॉम द स्किन, मतलब में उनकी जो स्किन होती है समझ लो, तो O2 जो है वो इधर से अंदर जाएगा, और इधर ही हमने पढ़ी थी ब्लड वेसल्स होती हैं सारी। फाइन, तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स क्या करेगी, इधर से CO2 को बाहर निकालेगी, वही ब्लड वेसल से CO2 और ऑक्सीजन सर्कुलेट होगा, और वही ब्लड वेसल से फिर स्किन के थ्रू CO2 बाहर निकलेगा। सो एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द स्किन। फाइन, और वो जो O2 और CO2 है वो ब्लड के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो दैट इज अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। फाइन, वी शैल इन द कमिंग क्लास स्टडी अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ द earthworm and the sense organs associated. Thank you.